Very good morning, you're watching NewsX and I'm Shivani Singh. Delhi woke up to a thick blanket of smog with air quality remaining firmly in the hazardous category. The air quality index reading overall stands at 548. With this, the visibility has also dropped sharply in several areas. Meanwhile, GRAP 4 has also been invoked in the National Capital Region. Amid changing weather conditions, Indigo Airlines has issued a travel advisory for passengers as Delhi witnessed the first signs of winter fog this season, impacting visibility at the airport as well. In its advisory, the airline said that visibility levels around the airport were currently reduced, and as a result, flight operations were being adjusted, with some departures likely to take longer than usual. In fact, I have my colleague Rumi Mishra who will be taking us through what the air quality index is like at several places in the Delhi NCR region. Rumi, could you take us through the details, please? Shivani, if you can look at my screen right here, we see that the AQI in Delhi is currently hazardous, with the AQI standing at 526 right now. The carbon monoxide levels are 514, NO2 levels are 38. Ozone level is slightly more than yesterday's 3, it's at 4 today. PM 2.5 levels, which are of course very small hazardous elements in the air, currently stand at 338 μg per meter cube. If we look at Delhi, Shivani, here on the map right here, I can see that it's just a cluster of red that I can see when I look at the National Capital Region. Zooming into this area, I see that the AQI ranges from 424 to even as far as 694. So I'll click on here and I'll notice that the AQI near Mojpur at Gautampuri is currently 694. The AQI at near the NDMC Park is 565. The AQI at Indian Agricultural Research Institute is 708. So here the AQI has crossed the 700 mark right now. 702 also we can see around the sector 127 area of Noida. Meanwhile, again, if we go towards Sarai Kale Khan extension, we see 708. If we go towards Gautam Marg, the AQI currently stands at 499. City Fort complex in the meantime has an AQI of 511. The PM 2.5 levels are of course very concerning. Here the PM 2.5 levels are 595 while the PM 10 levels are 578. If you go a little bit towards the western side of Delhi, Shivani, you would see a little respite. Here the numbers are more towards the 400 side. Here, of course, Punjabi Bagh extension has an AQI of 549. Again, around the Tihar jail area, around Tilak Nagar extension, the AQI is 491. It's ranging. It's a range that we can see from 414 to 551, even 599 at some places near the Meera Bagh in Sundar Vihar. Over to you, Shivani. All right, thank you so much, Rumi, for those details on what the actual AQI is in various parts of the National Capital Region. Let's now in fact take a look at the comparison of AQI levels of today with last week, last month and last year. Remember that this today's smog was a lot, and we are seeing affecting in fact the flight visibilities as well. So when we look at Delhi's AQI today versus last week, December 15, 2025, and we'll compare it to December 8, 2025, today's AQI stands at 548. Remember that this is an average AQI that we've got for you, and on 8th December it was only 248. Now when we are comparing it to last month on 15th November 2025 it was 357, and today 548. So you can look at that amount, that average amount has also increased by around 200. And if we compare it to last year, 15th December 2025 versus 15th November 2024, it was only 219, and today we are looking at
548. So you can look at that difference. It's a lot of difference that is coming to the fore, and Delhi today is battling with a lot of fog in a lot of areas. There is visibility which has been reduced across airports as well. And now joining me live on the broadcast are my colleagues who are present on the ground in various areas of Delhi NCR, like Delhi, Noida, Greater Noida, and all of these people will bring the live reports of what's actually happening on ground. So Brian Thomas is joining us from Bharat Mandapam, Akram Khan is joining us from Noida and Greater Noida, and Ali Khan is joining us from Noida, and Anil Chaudhary is joining us from Ghaziabad. Let me first go across to Brian Thomas, who's present at Bharat Mandapam over there. Brian, when you're looking at the situation over there, what is the fog situation? What is the AQI? And what is the impact of GRAP 4 now being implemented across the region? Well, we are at the Pragati Meda footover bridge, and here the situation remains extremely grim. The air quality here stands up to 486, again in the very severe category. What the visuals we are showing you, the fact that the visual looks extremely alarming. Here you can see that the entire visibility has been compromised. The visibility remains a model of question itself. Here ahead, just 200-300 meters away, as these signage boards that indicate where to go, what roads to be taken. But again, it is clearly not visible. The entire Bharat Mandapam campus is not visible because of the thick layer of smog that is shading, that is the national capital itself. Clearly from morning itself, from 6 a.m. itself, the entire visibility has been compromised here. The problem, the fact that two-wheelers and four-wheelers will be facing the maximum wrath of it with the high air quality here itself. Not just the high air quality, but again, the airport advisory, the airport has also given an advisory, Indigo has also given an advisory that there would be cancellation, there can be delay in flights because of the visibility issues. Now again, when you when we show you the visuals of the fact, you can see and understand the fact that this looks extremely dangerous for people who are traveling from two-wheelers or four-wheelers, and this is the situation itself. And while we are speaking also, it feels like we are choking in this air. The eye irritation is evident. The air is getting compromised as we are speaking, as the fact that this looks very dangerous to all the people, especially asthmatic patients, pregnant women who will be facing the major wrath of it. Yes. Absolutely, Brian. Please do take care of yourself over there. In fact, let me go across to Akram Khan, who's joining us from Greater Noida. Akram, वहाँ पर क्या स्थिति बनी है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में तो हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर फॉग भी है, लोगों को दिक्कत आ रही है चलाने में गाड़ियाँ भी, और ब्रीदिंग में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है. 500 क्रॉस हो चुकी है AQI इंडेक्स. अक्रम, अगर गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इस समय जो AQI लेवल है वो 430 से ऊपर है इस समय का. और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कोहरा पड़ रहा है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है. और देखिए सामने की आप तस्वीर देख सकते हैं, एकदम धुंध है. जो वाहन है उन्हें आप देख सकते हैं कि जो फॉग लाइट जला जलाकर वो निकल रहे हैं यहाँ से, और ऐसे में जो विजिबिलिटी है बेहद शून्य है. चाहे वो सड़कों का हाल देखिए, और देखिए गाड़ियां जितनी भी आपको दिखेंगी वो सर फॉग लाइट जलाकर और बेहद स्लो स्पीड है. ये कह सकते हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं. ऐसे में पास की जो तस्वीरें हैं वो भी नहीं दिख रही हैं. लगातार सुबह से जो कोहरे का असर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है. आलम यह है कि पास की जो लोग खड़े हुए हैं वो नहीं दिख रहे. और मैं इस समय परी चौक के पास खड़ा हुआ हूँ, जहाँ की तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक का दबाव है वो यही है. सड़कें जो है वो पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई है. मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिख नहीं रहा, और ऐसा लोग मान रहे हैं कि लगातार जो कोहरा है उसकी वजह से दुश्वारियां बढ़ रही हैं. अब अगर बात की जाए तो आज से कोहरे के कहर को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे ने और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसने और जिला प्रशासन ने जो तमाम हाईवे हैं, ईस्टर्न ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, नोएडा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, जितने एलिवेटेड रोड है उन सब की जो स्पीड लिमिट है वो घटा दी है, जिससे कि जो हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. हमने पिछले दिनों देखा
कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई दर्जनों वाहन आपस में टकराए थे। उसको कम करने के लिए जो स्पीड लिमिट पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, उसको घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनकी स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाईवे है वो ग्रेटर नोएडा के परी चौक के आसपास से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हादसों की संख्या है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही थी। कोहरे और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी डबल मार ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा देखिए दूसरी एक और खास बात यह है कि गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में जो जिला प्रशासन है उसने जो ऑनलाइन क्लासें हैं नर्सरी से लेकर प्री नर्सरी से लेकर 5 तक की वो ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए हैं अगले आदेश तक। और इसके अलावा जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक है उसको हाइब्रिड मोड पर चलाने के दिए हैं। इसके अलावा एक और खास आदेश ये दिया गया है कि जो कोचिंग संस्थान है वो भी अब ऑनलाइन क्लास चलाएंगे अगले आदेश तक। तो लगातार जो कोहरे का कहर है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले 17 दिसंबर तक अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर 17 दिसंबर के बाद सक्रिय हो रहा है, लेकिन उससे कितनी राहत मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह से ही लगातार ठंडी हवा भी चल रही है और इसके अलावा जो लोग हैं वो सड़कों पर बेहद कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक के लिए लोग निकल रहे हैं सड़कों पर वहां विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो हाईवे है जहां पर टोल प्लाजा है वहां पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि स्पीड लिमिट से चलाएं और जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें। और देखिए दूसरी बात ये हो रहा है कि जो ग्रेड 4 के नियम लागू किए गए हैं उसके बाद कल हमने देखा था कि गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर जितने BS4 वाहन और तमाम जो वाहन थे ऐसे जो प्रदूषण फैला रहे थे जिनके ऊपर ग्रेड 4 के तहत पाबंदियां लगी थी उन सबकी सख्ती से निपटा जा रहा था, चालान काटे जा रहे थे, सीज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ग्रेड 4 का भी नियम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी करवाते हुए अधिकारी सड़क पर नजर आए थे। लेकिन जिस तरह से कोहरा लगातार सुबह से बढ़ता जा रहा है और 9 के आसपास हो रहे हैं 9:30 के आसपास, लेकिन जो सुबह से हमने देखा उससे भी अब और ज्यादा कोहरा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। एक खास बात ये भी है कि जो यमुना एक्सप्रेस है और जो मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय पर परी चौक के पास, वहां से ही यमुना गुजरती है, जिसकी वजह से कोहरे का असर बेहद ज्यादा है और सबसे ज्यादा हादसों की खबर यहीं से ही ग्रेटर नोएडा में आती है। और जितने अलाव जलाने की व्यवस्था थी, क्योंकि रैन बसेरे की भी व्यवस्था अब जिला प्रशासन ने की है। लगातार जो कोहरा पड़ रहा है, जो ठंड की मार है, उससे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है उसे रैन बसेरे में सुरक्षित जगह पर भेजा जाए। इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था है वो भी पिछले 2-3 दिन से प्राधिकरण और जिला प्रशासन करवाता हुआ जगह जगह नजर आ रहा है। जी तो बिल्कुल, इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू अली खान जो कि हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। अली, क्या नोएडा में भी वही हाल है? हम देख रहे हैं आप जहां पर खड़े हैं अभी वहां पर फॉग बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और हमने ये भी देखा है कि फ़्लाइट ऑपरेशंस भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बट अब ग्रैब 4 मेजर्स प्लेस में है, क्या जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रही है? अली बिल्कुल, ग्राफ 4 के मेजर्स को लागू कर दिया गया है, पर कहीं ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट तमाम विभाग इसके लिए कोशिशें कर रही है। नोएडा अथॉरिटी अपने अपने उपायों की बात करें कि तमाम 14 टीमों का गठन किया गया है जो निगरानी तंत्र है, जिनका काम ग्राउंड पे रह के जितने भी ग्राफ 4 के नियम है उन्हें लागू कराना है। पर कहीं ना कहीं जो ग्राफ 4 के नियम है अभी भी उनकी अवहेलना होती है साफ नजर आ रही। कंस्ट्रक्शन साइट्स लगातार चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स और ढाबों पे लगातार तंदूर जो है कोयले और मट्टी वाला तंदूर उसका इस्तेमाल लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम ग्राफ 4 के नियम है जिनकी अवहेलना की जा रही है। वहीं डॉक्टर्स लगातार निर्देशित कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। तमाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस है कि आउटडोर एक्टिविटीज को लोग अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज करें। वहीं जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बेहद जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। मास्क का उपयोग जरूर करें, N95 या उससे बेहतर ही कोई मास्क उसका उपयोग करें, क्योंकि जो PM 2.5 है जब आप इसे इनहेल करते हैं तो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी तमाम बड़ी बीमारियों का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो बेहद खराब स्थिति नोएडा दिल्ली NCR की है, जिसकी वजह से आज फॉग भी है, तो जिसकी वजह से फॉग और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी लो नजर आ रही है।
तो अभी के लिए नोएडा की हालात बेहद खराब। वहीं कुछ लोग हमने जाना कि कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जो नोएडा छोड़ के नोएडा से आगे की तरफ जाके मूव कर रहे हैं, जो फिलहाल के लिए नोएडा का इक्वे जब तक खराब है तो लोगों ने वहां से निकलने का भी फैसला ले लिया। तो ऐसे तमाम लोग नजर आ रहे हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी है, जिला अस्पताल की ओपीडी है, उसमें भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। मरीज बेहद ज्यादा बढ़ गए हैं, जो गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याओं और खांसी जुकाम जैसे मरीज 2 दिन से जैसे AQI में स्तर में दोबारा इजाफा हुआ है, तो इनकी संख्या भी एकदम इजाफा हुआ है। तो आज मंडे का दिन है, तो आज भी माना जा रहा है कि AQI ऐसा ही रहेगा और आने वाले दिनों के लिए भी अभी AQI से कोई राहत मिलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। Okay, let me also go across to Anil Chaudhary who is joining us from Ghaziabad. Anil, गाजियाबाद में क्या हाल है? वहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि AQI लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अभी वहाँ पर रेसिडेंट्स क्या कह रहे हैं? क्या कुछ इम्प्लीमेंट हो पा रहा है ऑन ग्राउंड? सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर? देखिए, गाजियाबाद के AQI की अगर बात करें तो कई इलाकों का AQI 490 तक पहुंचा हुआ है। जैसे कि वसुंधरा इलाके की बात करें तो 490 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। वहीं इंदिरापुरम की बात करें तो 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं लोनी की अगर बात की जाए तो 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाए थे। आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद की देखने को मिल रही है। आप देखें किस तरीके से जो घनी धुंध है वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कोहरा और पोल्यूशन, ये दोनों का मिश्रण जो है अब लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे जितने भी वाहन आपको दिख रहे हैं सभी की हेडलाइट ऑन है। वजह यही है जो पास का ही लोगों को दिख नहीं रहा है और लगातार जिस तरीके से सड़कों पर पॉल्यूशन की जो चादर है वो देखने में लोगों को दिक्कत पैदा कर रही है। लोगों को कई बार जो है दूरदर्शिता में कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ रही है। वहीं टेम्परेचर की अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का टेम्परेचर भी दर्ज किया गया है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी कदम उठाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। जिला प्रशासन की तरफ से बीते कल ही रात को ही एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिसमें कि ये कहा गया था कक्षा प्राइमरी नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलाई जाएंगी और साथ ही जो कक्षा छठी से लेकर 11वीं तक जो है हाइब्रिड मोड पर जो है क्लासेस चलाई जाएंगी। इस तरीके की बातें जो है कह दी गई हैं। वहीं दिल्ली NCR में पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेड 4 के नियम पहले से ही लागू हैं। ग्रेड 4 के नियम जब लागू किए गए हैं उसके बाद से लगातार जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। एक टीम गठित कर दी गई है। वो टीमें सिर्फ ये मॉनिटरिंग कर रही है क्या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है या कोई ऐसी फैक्ट्री या कारखाने कोई ऐसे नहीं है जो पोल्यूशन फैला रहे हो। और साथ ही BS4 के जो वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ट्रक की जो एंट्री है वो दिल्ली में फिलहाल बंद कर दी गई है। तो जो गाजियाबाद का ट्रैफिक विभाग है उनकी तरफ से लगातार चेकिंग अभियान अब चलाया जा रहा है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनको सीज करने का काम किया जा रहा है, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं लगातार जो पानी का छिड़काव है वो भी सड़कों पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रेड 4 के नियम जब लागू किए गए उसके बाद से लगातार जो है जो टीमें हैं वो वर्क कर रही हैं, पर पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस खतरनाक पोल्यूशन से कैसे भी राहत लोगों को मिल जाए। अब लोग कर रहे हैं उम्मीद कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से सख्त जो है सख्ती बरती जाए, क्योंकि ग्रेड 4 के नियम जरूर लागू कर दिए गए हैं पर उस तरीके से जमीनी स्तर पर जो अधिकारियों का रवैया दिखना चाहिए, जो अधिकारियों की जो टीम है वो सड़कों पर दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। हालांकि जो कागजों में जो लिस्ट जो है वो जरूर तैयार कर दी जाती है, इतनी टीमें गठित की गई हैं और वो इस तरीके से काम कर रही हैं। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक जो है शासन प्रशासन की तरफ से सख्त रवैया अपनाया जाएगा,
जिससे कि इस खतरनाक पोल्यूशन पर कुछ भी कैसे भी कंट्रोल पाया जा सके। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट भावना सिसोदिया भी हमसे जुड़ गई हैं, वो पंडित पंथ मार्ग पे हैं। भावना, जब आप वहाँ पर ग्राउंड पे हैं, आप देख रही हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, फॉग है, स्मॉग है, फ्लाइट्स अफेक्ट हो गई हैं और AQI तो 500 तक पहुँच चुका है। लोगों के लिए सिर्फ परेशानी बढ़ रही है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आज के AQI की बात की जाए तो पंडित पंत मार्ग पर देखिए जो CAQM का ऐप समीर है, उसे पंडित पंत मार्ग पर AQI लेवल जो है वो 450 दिखा रहा है, यानी कि आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ऐप के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही सीवियर कैटेगरी में पहुंचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो ये पॉल्यूशन की वजह से लोग जो है उनकी हेल्थ पे जो है इफेक्ट पड़ सकता है। और देखिए जिस तरीके से AQI लेवल बेहद ही खराब में पहुंचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। जहां एक तरफ मौसम परिवर्तन, वहीं दूसरी तरफ बिगड़ती आबोहवा लोगों के लिए जो है समस्या बन चुकी है। चूंकि आप देख सकते हैं, देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, हम लोग पंडित पंत मार्ग पर हैं और यहाँ पर अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही कम जो है विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से लो होती नजर आ रही है। जो वाहन है वो उनकी रफ्तार जो है वो धीमी होती नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ ठंड की दस्तक जिसकी वजह से धुंध देखी जा रही है और दूसरी तरफ स्मोक लेयर जो है वो दोनों ही मिलकर दिल्ली के एटमॉस्फेयर के ऊपर काफी असर डाल रही है और यही बिगड़ती आबो हवा और बढ़ती ठंड लगातार दिल्ली वालों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। वहीं इसी वजह से जिस तरीके से विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है, इसी वजह से जो है फ्लाइट्स भी डिले होती नजर आ रही है। माफी चाहूंगी, फ्लाइट्स भी जो है वो डिले होती नजर आ रही है। अब तक लगभग 170 फ्लाइट्स जो हैं वो फॉर्म और स्मोक के कारण जो है डिले हो चुकी हैं और इंडिगो द्वारा साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि जिसकी भी फ्लाइट है वो अपना शेड्यूल ऑनलाइन चेक कर एयरपोर्ट पर पहुंचे। चूंकि अगर देखा जाए तो दिसंबर माह में जिस तरीके से इंडिगो क्राइसिस देखा गया था, पैसेंजर परेशान होते नजर आए थे और कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के अंदर गुस्सा भी देखा गया था। तो यात्रियों को अब किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर इंडिगो पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। बिगड़ती आबो हवा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिगड़ती आबो हवा लगातार सांसों का संकट बनती जा रही है, क्योंकि PM 2.5 अगर शरीर में जाता है तो वो कार्डियक अरेस्ट का खतरा बन रहा है। जहां ठंड का मौसम दस्तक दे चुकी है, वहीं बिगड़ती आबो हवा तो अस्थमैटिक पेशेंट्स भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूंगी, देखिए जहां दिल्ली में ग्राफ 4 के नियमों को लागू कर दिया गया है, लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग की बात की जाती है, मैकेनिकल स्वेपिंग की बात की जाती है। आप देख सकते हैं सरकारी दफ्तर के बाहर ही जो है मैनुअल सफाई की जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि आप देखिए जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि मैनुअल स्वेपिंग नहीं होगी, मैकेनिकल स्वेपिंग होगी, ताकि भावना धन्यवाद आप